آئیے خداوند کے زندہ کلام مقدس کی طرف رخ کریں۔ یہ کلام جو اس نے مجھے اور آپ کو بخشا بڑی قدرت والا کلام ہے۔ آمین۔ آئیے زندہ کلام مقدس میں سے دیکھیں زبوروں کی کتاب میں زبور 138 138 اس کی دوسری آیت۔ ہم خدا کی ذات پر غور کر رہے ہیں، ہمارا خدا کیسا خدا ہے اور قوموں کے معبود کیسے ہیں۔ دو حوالہ جات خداوند کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ پہلا زبوروں کی کتاب میں زبور نمبر 138 اس کی دوسری آیت، بلکہ پہلی سے پڑھتے ہیں۔ یہ داؤد کا زبور ہے اور داؤد کہتا ہے، میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا۔ کیوں وجہ بیان کی گئی آگے؟ کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ آمین۔ دو باتیں اس زبور میں داؤد نے کہیں۔ ایک تو کہتا ہے کہ میں معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا، دوسرا اس نے کہا کہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی۔ اسی کے ساتھ دیکھیے متی کی معرفت انجیلی بیان اس کا 5واں باب اور اس کی 17-18 آیت۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ دوسرا ایک اور حوالہ اسی انجیلی مقدس میں انجیلی بیان میں 24واں باب 32ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت کے آخر تک، یہاں پر لکھا ہے، اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں کہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آمین۔ داؤد اس کے تعلق سے کہتا ہے، یہاں پر میں نے بتایا دو باتیں داؤد کہتا ہے کہ میں معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ داؤد جس کے لیے خدا نے خود کہا کہ ایک شخص مجھے مل گیا جو میرے دل کے موافق، کس کے دل کے؟ خدا کے دل کے۔ کوئی شخص خدا کے دل کے موافق ہو، کیسا لگتا ہے؟ اگر خدا میرے تعلق سے، آپ کے تعلق سے یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی میرے دل کے موافق ہے، تو کیا خوشی نہیں ہوگی؟ کیا یہ بڑی بات نہیں؟ کیا یہ برکت کی بات نہیں؟ کیا یہ جلالی بات نہیں کہ کوئی شخص خدا کے دل کے موافق ہو؟ لیکن افسوس، وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ بنی آدم کا دل بشدت، کس طرح؟ بشدت گناہ کی طرف مائل ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ ہم خدا اور اس کے کلام کے طالب نہیں۔ اس لیے ہم خدا کے دل کے موافق جب نہیں ہوتے تو ایک افسوس، ایک افسردگی، ایک نا امیدی، مایوسی رہتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ اس زمین پر نہ آئندہ جہان میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم اور ہمارا دل خدا کی طرف مائل نہیں۔ اسی سبب سے ہم خدا کی بارگاہوں میں آنے کی دلیری نہیں رکھتے، ہمارے اندر شرمندگی ہوتی ہے، ہم خدا کے حضور آتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدا ہماری دعا کو سن کر جواب نہیں دے گا کیونکہ وہ ہم سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ ہم خدا کے دل کے موافق نہیں۔ لیکن داؤد کے تعلق سے لکھا کہ داؤد میرے دل کے موافق۔ تو جب میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں تو عبرانیوں کے خط اس کے 7ویں باب میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جتنے خدا کے پاس آتے ہیں، کتنے؟ جتنے اس روح زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ کسی بھی مذہب کے تعلق سے وہ ہوں، کیسے ہی بڑے اور غریب آدمی کیوں نہ ہو، کیسے ہی رنگ و نسل کے آدمی کیوں نہ ہو، وہ سب ان کو خداوند یسوع مسیح پوری نجات دے سکتا ہے۔ ہاللیلویہ، یہ برکت کی بات ہے۔ تو خدا پھر ہمیں ایک نیا دل دیتا ہے، وہ دل جس کے لیے یرمیہ کے اور حزقیل کے کلام میں خدا نے کہا ایک نیا دل
تمہیں دوں گا اور اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا تاکہ تم میرے آئین و احکام کی پیروی کرو۔ جب ہم خدا کے کلام کی پیروی کرتے تو داؤد کی مانند خدا کے دل کے موافق، تو خدا ہمارے لیے آسمانوں پر خوشی کرتا، فرشتے خوشی کرتے۔ لکھا زمین پر ایک گناہ گار کے توبہ کرنے پر آسمان پر پارٹی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ پارٹی ہوتی ہے جی، جشن ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا، یسوع نے کہا کہ آسمان پر فرشتے خوشی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو وہ خدا کے دل کے موافق۔ تو داؤد کہتا ہے معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ داؤد کو یہ بات پتا تھی کہ اسرائیل کے خدا کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی خدا۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم سے کہا تھا، داؤد اس آیت سے واقف تھا۔ استثنا کی کتاب اس کے 6ویں باب کے اندر یہ لکھا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا کتنے خدا ہیں؟ ایک ہی خدا۔ تو اپنے پورے دل، پوری جان، پوری طاقت، پوری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ داؤد کو پتا تھا کہ ایک ہی خدا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ معبود جو بول نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو چھو نہیں سکتے، جو چل پھر نہیں سکتے، میں ان کے سامنے اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ ایک بات۔ دوسری بات وہ کہتا ہے کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی۔ آج ہم اسی کے تعلق سے دیکھیں گے مزید خدا کا نام اور خدا کے کلام کی عظمت۔ جب داؤد یہ کہتا ہے کہ تو نے اپنے ہر نام سے زیادہ، جتنے بھی نام خداوند نے کتاب مقدس میں اور خدا کی ذات کی خوبیوں کے تعلق سے القاب موجود ہیں، ان سب ناموں سے تو نے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دی۔ آج کا پیغام بھی یہی ہے، خدا کے کلام کی عظمت، خدا کے کلام کی بزرگی، کہ خدا ہے اور اس کے منہ کا کلام، وہ کیا بولتا ہے، وہ کیسا بولتا ہے، اور اس کے بولنے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور اس کے کلام کی قدر و قیمت، اس کا اختیار، اس کی قدرت کس قدر بڑی ہے۔ اسی کے تعلق سے آج صبح ہم دیکھیں گے جب داؤد کہتا ہے کہ اپنے ہر نام سے زیادہ، خدا نے کہا کہ میرا نام ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے نام سے چلے گا، کہ میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا۔ خروج کی کتاب اس کے 3 باب میں جب موسیٰ خدا سے کہتا ہے جب میں بنی اسرائیل قوم کے پاس جاؤں تو میں ان کو کیا کہوں؟ موسیٰ کہتا مجھے اپنا نام بتا۔ خدا کہتا ہے میں جو ہوں سو میں ہوں۔ یہ خدا کا نام ہے جی، یہ خدا کا نام ہے، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ دوسرا نام خدا نے خروج کی کتاب اس کے 6ویں باب میں موسیٰ سے کہا کہ میں اپنے یہوہ نام سے کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہوا۔ خدا کا دوسرا نام یہوہ، میں جو ہوں سو میں ہوں، اور یہوہ ایک ہی بات ہے، وہ خدا جو ازل سے اور خود سے ہے، اس کے سبب سے یہ جہان موجود ہے۔ یہ خدا کے نام کا مطلب یہوہ کا۔ تو داؤد کہتا ہے کہ اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو، کس کو؟ کلام کو، وہ کلام جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے، وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، خدا کے نام سے زیادہ خدا نے اس کو عظمت دی۔ ایسا لگتا ہے کہ خدا کے نام کی کم قدر ہے اور اس کے کلام کی زیادہ قدر ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ کسی شخص کی پہچان اس کے کاموں سے ہوتی ہے۔ ہم کسی شخص کا نام لیں، اور جب اس شخص کا نام لیتے ہیں تو ہمیں اس شخص کا نام لیتے ہی جو بات ہمارے ذہن میں آتی ہے اس کے کام۔ کوئی شخص اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اچھا شخص ہے، یہ برا شخص ہے۔ آپ کسی کمپنی کا نام لیں، جو پروڈکٹ وہ کمپنی بنائے گی اور اس کا کلیم کرے گی کہ یہ موبائل، یہ لائٹ، یہ پنکھا جو ہم نے بنایا یہ کیسا ہے، اگر وہ کمپنی جو اس نے بیان دیا اس چیز کے حوالہ سے اگر وہ غلط ثابت ہو تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جھوٹی، دھوکے باز، جھوٹی اور دھوکے باز۔ کوئی باس، کوئی افسر اپنے آفس میں اسی سے پہچانا جاتا ہے، جب وہ اپنے جونیئر سے، اپنے تابع لوگوں سے کوئی بات کہے اور اگر اسے پورا نہ کرے تو ہم کہتے ہیں یار اللہ رے لاندہ ہے، اس کی بات، اس کی پرسنالٹی قابل اعتبار، قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی شخص اپنے کہے کے مطابق پورا کرے تو اس کی بڑی عزت، اس کی بڑی، وہ قابل اعتماد۔ ہم کہتے ہیں جب اس شخص کا نام سنتے ہی ہم اس بات کے تابع ہو جاتے ہیں، وہ بات جو اس نے کہی وہ بات ہمیں مغلوب کر لیتی ہے، وہ بات ہمیں مغلوب کر لیتی ہے، اس سبب سے کہ اس شخص نے جو بیان دیا، اس شخص نے جو کلام کیا، یہ عین ویسا ہی ہے، جیسا اس نے کہا یہ ویسا ہی کرے گا۔ کوئی شخص اپنے
बोले हुए कलाम के पूरा करने के सबब से अपनी इज्जत पाता और गंवा देता है। लेकिन जब खुदा की बात करते हैं, तो जब खुदा के नाम और कलाम की बात आती है, तो ऐसा हरगिज नहीं कि खुदा का नाम कमतर है और उसका कलाम बरतर है। मतलब ये कि खुदा का नाम जो है उसके कलाम से पहचाना जाता है कि खुदा, इस्राएल का खुदा कैसा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल के खुदा की जो इज्जत है, जो मर्तबा है, वो अपने काम और अपने कलाम से पहचाना जाता है। जैसा खुदा का काम है वैसा ही उसका। अक्सर ये जुमला आप बनाई हुई चीजों पर पढ़ेंगे, नाम ही क्या काफी है, नाम ही काफी है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने अपना म्यार अपने काम से बनाया है, अपना म्यार अपने काम से बनाया है। अगर उस कंपनी का काम उसके म्यार के मुताबिक ना हो तो उसकी कोई इज्जत नहीं। हम उस प्रोडक्ट का नाम सुनते कहते हो नहीं यार 2 नंबर शैब है, ये कंपनी काबिल एतबार नहीं, ये शख्स काबिल एतबार नहीं। तो इस्राएल का खुदा काबिल एतबार, काबिल भरोसा खुदा है। आप और मैं और दुनिया का हर शख्स उसके मुंह के कलाम पर भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। खुदा ने दाऊद से कलाम किया कि मैं तेरी नस्ल से एक बेटा पैदा करूंगा। दाऊद की जिंदगी के अंदर खुदा ने जो जो कलाम किया, खुदा ने बैन वैसा ही उसको पूरा किया। दाऊद को इन बातों का पता था, दाऊद को इन बातों का तजर्बा था कि खुदा ने उसको किस तरह से भेड़साला से लिया है और खुदा ने उसके वसीला से अपने मुंह के कलाम को पूरा किया। तो जो कलाम का तजर्बा दाऊद की जिंदगी में था, दाऊद उसी को यहां पर बयान कर रहा है। वो खुदा की पर्सनैलिटी को उसके कलाम से बयान करता है, वो खुदा की जात को खुदा के कलाम से बयान करता है, वो खुदा की खूबी को खुदा के कलाम से बयान करता है कि इस्राएल का खुदा कैसा खुदा है। और कौमों के माबूद वो कहते हैं कि मैं उनके सामने जाकर, उन माबूदों के सामने जाकर तेरी तारीफ करूंगा कि तुम जैसा मेरा खुदा नहीं बल्कि तुमसे बढ़कर मेरा खुदा है। कलाम में लिखा आसमान और जमीन में बथेरे खुदा और बथेरे खुदावंद कहलाते हैं, लेकिन खुदा बाप की मानिंद, उसके बेटे की मानिंद एक भी नहीं। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि आसमान तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। खुदा ने सिर्फ यीशु नाम बख्शा। आमीन। सो दाऊद खुदा की तारीफ करने के लिए गैर मबूतों के सामने जाकर खड़ा होता है और खुदा की जात का ऐलान करता है कि तुम बुत हो, तुम इंसान के हाथ की बनाई हुई कारीगरी हो। तुम सुन नहीं सकते, कान हैं सुन नहीं सकते, आंखें हैं देख नहीं सकते, पांव हैं चल नहीं सकते, हाथ हैं लेकिन छू नहीं सकते, मुंह है पर बोल नहीं सकते, लेकिन मेरा खुदा देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है और वो छू कर जवाब देता है। हालेलुया। वो खुदा की जात की तारीफ करता है कि खुदा का कलाम किस कदर मुअत्तबर है, किस कदर आला अरफा खुदा का कलाम। जब वो खुदा के कलाम का बयान करता है तो खुदा का कलाम, जब हम बाइबल मुकद्दस में पैदाइश से मुकाशफा तक देखते हैं, जब पैदाइश से मुकाशफा तक देखते हैं तो खुदा का कलाम हमें इब्तिदा से और इंतहा तक दिखाई देता है कि वो कैसा कुदरत वाला कलाम जो हालात को बदलता, जमानों को बदलता, तख्लीक के काम करता, जिंदगियों को बदलता, बीमारियों को दूर करता, कुदरत के साथ जिंदगी में जाहिर होता है। आमीन। जब हम इस बात को देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने खुदा के कलाम की इज्जत नहीं की, जिन्होंने खुदा के कलाम की इज्जत नहीं की, इस जमीन पर किस तरह जलील और रुस्वा और हलाक हुए। उनकी इज्जत जाती रही, उनका मर्तबा जाता रहा। जिस जगह पर वो थे उस जगह से गिरा दिए गए, उस जगह से हटा दिए गए, उस जगह से पीछे कर दिए गए। जब हम खुदा के कलाम की इज्जत नहीं करते, जब हम खुदा के कलाम का ऑनर नहीं करते, उसके कलाम का लिहाज नहीं करते, उसके कलाम की पासदारी नहीं करते, तो खुदा जिस जगह पर हम होते हैं हमें हटा देता है। फिर हम कहते हैं हमें समझ नहीं आती, हमारी जिंदगी के हालात ऐसे क्यों हैं। फिर हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर हम कहते हैं कि सब लोग तरक्की कर रहे हैं, मैं क्यों तनस्ली की तरफ जा रहा हूं, मैं क्यों नीचे गिरता ही जा रहा हूं और ऊपर नहीं आ पाता, क्योंकि हमने कलाम को छोड़ दिया। आदम को देखें, हवा को देखें, खुदा के बोले हुए कलाम को, बताए हुए कलाम से वो हट गए।
खुदा ने कहा जिस रोज तूने खाया तू मरा। क्या वो नहीं मरा? मरा, क्योंकि खुदा के कलाम इज्जत नहीं की, खुदा के कलाम की तहकीर की। नूह नबी के दिनों में देखे, खुदा ने नूह से कहा था कि एक तूफान आएगा, तूफान आएगा। उस दौर के लोगों ने उस कलाम को कबूल नहीं किया, उसके कलाम पर कान नहीं धरा, ध्यान नहीं दिया और उसको ठट्ठों में उड़ाते रहे, उसकी तजलील करते रहे। आज भी लोग ऐसे ही ठट्ठों में उड़ाते हैं, कहते हैं यार ए पादरियां दे काम में इंज कहना, डराना, डरा डरा के लोगों को तौबा करा देने। हरगिज़ नहीं, ये खुदा के कलाम की सच्चाई है जो बयान की जाती है। खुदा ने कहा था तूफान आएगा और तूफान आया, और उस दौर के सब लोगों को सिवाय नूह और उसके घराने को छोड़कर सब हलाक हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया, इज्जत ना की, खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट नहीं की, खुदा के कलाम को सुनकर खौफ उनके दिलों में पैदा नहीं हुआ, खुदा के कलाम को सुनकर वो डरे नहीं, खुदा के कलाम को सुनकर वो कांपे नहीं, खुदा के कलाम को सुनकर वो झुके नहीं, खुदा के कलाम को सुनकर वो तालिब नहीं हुए। खुदा ने लूत से कहा था कि वो पीछे मुड़कर ना देखे। उसकी बीवी क्या किया उसने? क्या पीछे मुड़कर नहीं देखा? देखा, और वहीं पर वो नमक का सतून बन गई। क्यों? क्योंकि उसने कलाम को रद्द किया, उसने कलाम की इज्जत नहीं की। जब खुदा ने अब्राहम से कहा था कि तेरे सुल्ब से तेरी बीवी सारा के बेटा होगा, लेकिन सारा ने क्या किया कि अपनी लौंडी उसे दे दी, तो क्या इस सबब से सारा की इज्जत हुई? नहीं, बल्कि दुनिया दुख के अंदर पड़ गई। उससे जो नस्ल चली आज तक वो लोगों को दुख दे रही है। क्यों? क्योंकि सारा ने खुदा के कलाम की इज्जत नहीं की। उसके सबब से दुनिया के अंदर नुकसान हुआ, हलाकत आई, गुमराही आई, क्योंकि सारा ने खुदा के कलाम की इज्जत नहीं की। और बनी इस्राएल कौम देखें, खुदा ने गिनती की किताब उसके 13वें-14वें बाब को पढ़ें तो वहां पर ये बहुत तफसील से लिखा हुआ है, बहुत तफसील से। खुदा ने कहा कि तुम जाओ उस मुल्क में, कनान में, वहां से तुम आते हुए वहां का फल लेते आना। हर कबीले में से एक शख्स चुना गया, 12 लोग जो है उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने के लिए भेजे गए कि जाकर देखो वो मुल्क कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वो कैसे घरों में रहते हैं, जाकर देखो। आपको मुझे ये देखना है कि इब्लीस किस तरह से काम करता है। अगर मैं और आप इब्लीस के कामों को देखेंगे नहीं तो हम उसके मुकाबला में खड़े नहीं हो सकते। 12 लोगों में से 10 लोग उन्होंने खुदा के कलाम को रिजेक्ट कर दिया, वो खुदा के कलाम के ऊपर ईमान न लाए। और खुदा ने कहा कि ये 40 वर्ष तक बेआबाद में थक्के खाते फिरेंगे। 10 बार इन्होंने मुझे आजमाया और हर बार मेरी इंसल्ट की, मेरे कलाम पर वो ईमान न लाए, खुदा के कलाम को रद्द कर दिया। और जब खुदा के कलाम को रद्द किया तो लिखा वो रोने लगे, वो रोने लगे। यशवा और कालिब ने अपने कपड़े फाड़े कि तुम क्यों खुदा पर ईमान नहीं लाते। वो रोए और चिल्लाए कि खुदा हम मौजूद हैं, हम हाजिर हैं, हम तेरे कलाम को सुनेंगे, हम तेरे कलाम के शिनवा होंगे। और वो शोखी करके, गिनती की किताब उसके 14वें बाब के अंदर पढ़े, वहां पर लिखा है कि वो शोखी करके पहाड़ पर चढ़े ताकि कनान के मुल्क पर हमला करें। लेकिन खुदा मूसा ने कहा कि तुम क्यों खुदा के हुक्म की अदुली करते हो, हुक्म अदुली करते हो खुदा के कलाम की, क्योंकि खुदा तुम्हारे दरमियान नहीं। जब हम खुदा के कलाम की तहकीर करते हैं तो खुदा हमसे हट जाता है। कलाम में लिखा है समसून को पता नहीं चला, खुदा उससे जुदा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अहद को तोड़ दिया, उसने कलाम को तोड़ दिया, उस कलाम के खिलाफ गया और अपनी कुव्वत खो दी। जब हम खुदा के कलाम के साथ खड़े नहीं होते, वो कुव्वत, वो बरकत जो खुदा ने हमें दी, हम खो देते हैं। फिर कहते हैं यार पता नहीं आजकल मुझे दुआ का जवाब नहीं आता। हमें अपनी जिंदगियों के ऊपर गौर करने की जरूरत, कहां पर, किस वक्त हमने खुदा के कलाम को रद्द किया, किस जगह हमने खुदा के कलाम के ऊपर तवज्जो नहीं की। और जब वो शौकी करके चढ़े तो लिखा कनानियों ने उनको मारा क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया था। खुदा ने उस काहिन को, जो पुराने अहदनामा में हमें शरीयत के मुताबिक पहला काहिन दिखाई देता है जिसे हारून काहिन कहते हैं, उसको नहीं छोड़ा। मरीबा के चश्मा के ऊपर जब वो और मूसा, जब खुदा ने कहा कि चट्टान से कह कि तुझे पानी दे, तो हारून और मूसा ने मिलकर, दोनों ने खुदा के कलाम की अदुली की,
नाफरमानी की, चट्टान से कहने की बजाय उसको मारा। तो कलाम में लिखा है कि हारून के ताल्लुक से कि वो नबू के पहाड़ के ऊपर जैसे ही उसके कपड़े उतारे गए मर गया। और वहां पर बाकायदा ये लिखा है क्योंकि हारून ने खुदा के कलाम के खिलाफ अमल किया, खुदा के कलाम की तहकीर की। जो खुदा ने कहा जब हम उससे हट जाते हैं तो खुदा अदालत करता है। खुदा उस शख्स का लिहाज नहीं करता, खा वो मूसा हो खा वो कोई भी शख्स हो। खुदा ने मूसा को नहीं छोड़ा, मूसा ने हारून के साथ मिलकर, हारून ने मूसा के साथ मिलकर खुदा के कलाम की नाफरमानी की, हकारत की। और मूसा के ताल्लुक से भी लिखा इस्तिस्ना की किताब उसके 32वें बाब में, जैसा हारून ने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया, इज्जत ना की, मूसा भी उसी पहाड़ पर जहां हारून की डेथ हुई उसी पहाड़ पर मूसा की भी डेथ हुई। और खुदा ने कहा कि तू उस मुल्क में जाने ना पाएगा। खुदा अपने कलाम का किस कदर लिहाज करता है। खुदा के कलाम से हटने वाले जिंदगी नहीं मौत पाते हैं। खुदा के कलाम से हटने वाले बरकत नहीं लानत पाते हैं। खुदा ने बनी इस्राएल कौम को अपने आईन और अहकाम दिए। इस्तिस्ना की किताब 28वें बाब को पढ़े, खुरूज की किताब को पढ़े, 19वें बाब से अहकामात मिलेंगे आपको। और बनी इस्राएल कौम से खुदा ने कहा था अगर तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो तो ये सब बरकतें तुम पर नाजिल होंगी, सब बरकतें तुम पर नाजिल होंगी। लेकिन अगर उसके कलाम को छोड़ दो, उसके कलाम को रद्द कर दो, तो जितनी की बातें शरीयत की किताब में लानते लिखी हैं ये सब तुम पर आएंगी। कितनी बातें? सब लानते। बनी इस्राएल कौम, उन्होंने खुदा के कलाम को बार 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 रद्द किया। और यिर्मयाह की मार्फत खुदा ने कहा कि ये 70 साल के लिए बाबल की गुलामी के अंदर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को, खुदा को रद्द किया। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम को रद्द करते तो एक लंबे अरसा तक के लिए हम गुलामी के अंदर इब्लीस के हाथों सौंप दिए जाते हैं। लोग इब्लीस के हाथ में हैं और पहचान नहीं पाते। कलाम में लिखा है कि खुदा ने बन इसराइल को बेच दिया दुश्मन के हाथ में। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया। खुदा दुश्मन के हवाले कर देता है। जब खुदा हट जाता है तो दुश्मन खुद ब खुद आ जाता है। उसके पास कानूनी इख्तियार है कि वो आ जाए और गारत करे, हलाक करे, बर्बाद करे, जिंदगी को परेशान करे, मुसीबतों के अंदर ले आए, दुखों के अंदर ले आए। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम किसी शख्स की जिंदगी में नहीं। लेकिन वो लोग जिन्होंने कलाम की इज्जत की, बाइबल मुकद्दस उससे भरी पड़ी है। जब हम वाइस की किताब को पढ़ते हैं उसके 5वें बाब को दूसरी आयत में लिखा है कि तू जल्दबाजी से कुछ ना कह, जो बातें तेरे दिल में हैं एकदम से उसको ना बोल। तेरा मन्नत ना मानने से बेहतर था कि तू मन्नत माने और पूरी ना करे। हम बहुत जल्द कोई बात खुदा से कहने में जल्दी करते हैं। अगर खुदा तू मुझे ये बरकत दे, अगर तू मेरा ये काम करे, अगर तू मेरी जिंदगी के हालात बदल दे तो मैं ये करूंगा। और जब हम नहीं करते तो लानत और सजा हमारे हक में पूरी होती है। हम बड़ी जल्दबाज लोग हैं, जल्दी से बातें बोल देते हैं। लेकिन कलाम में लिखा कि तेरा मन्नत ना मानना, तेरा वादा ना करना, इससे बेहतर था कि तू वादा करता और पूरा करता। चाहिए तो ये था कि वादा कर और पूरा कर। जो कलाम तूने कहा, हम में से हर एक शख्स अपने कलाम के ताल्लुक से पहचाना जाता है। अगर हम कोई बात करें और उसके ऊपर पूरा खड़े रहे, पुराने लोगों के ताल्लुक से ये कहा जाता था कि भैया बड़े जबान दे पक्के होंगे ने जी। आज वो लोग कहाँ हैं? आज के लोग कलाम की पासदारी नहीं करते। अगर किसी ने किसी वक्त में किसी को बेटा, भाई, बाप बना लिया तो वो मरते दम तक उस कलाम के साथ वफादार रहता था। लेकिन आज कहते हैं ले इन्हें कर दिता, केड़ा वड्डी गल की थी, सानू मौका मिलेगा असीं भी कर देंगे। अपने मुंह की बात को पूरा नहीं करते और खुद ही लानत के नीचे आ जाते हैं। अपने कलाम की नफी करते और हमारी पहचान एक धोखेबाज, फरेबी शख्स के तौर पर होती है। वो यह शख्स तो बिल्कुल ही काबिल भरोसा नहीं। फिर हम कहते हैं एक जुमला जो बड़ा आम है, कहा जाता है अगर ये शख्स गर्म तवे के ऊपर भी बैठे तो मैं इसका यकीन ना करूं। पंजाबी जी कहते तत्ते तवे तभी भवे ते मैदा, यकीन ना करा। क्यों? क्योंकि जब भी वो शख्स बात करता है उससे फिर जाता है। ऐसे शख्स की क्या कदर मंजिलत है, क्या इज्जत है? कुछ भी नहीं। लेकिन जिस शख्स ने खुदा के कलाम की पासदारी की, नूह को देखें, वो खौफ खा गया, वो डर गया, वो कांप गया कलाम को सुनकर और अपने घराने के लिए कश्ती बनाना शुरू की। क्या किया? कश्ती बनाना शुरू की और
खुदा के कलाम को पूरा करके, खुदा के कलाम के ताबे होकर वो और उसका घराना क्या हुआ? बच गए, जिंदगी पा गए। वही इंसान थे नूह और उसके बेटे और उसकी जो बहुएं थी, उसकी बीवी, उसी से ये पूरी दुनिया आज हमें इस जमीन के ऊपर आप पढ़ते हुए देख सकते हैं कि किस कदर लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की तादाद में इस दुनिया पर लोग मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि उस खानदान ने खुदा के कलाम की ताबेदारी की और बनी नौ इंसान बच गई। जब हम खुदा के कलाम की ताबेदारी करते हैं तो देखें कि एक शख्स के कलाम की ताबेदारी से किस तरह दुनिया बरकत पाती है। पूरी नस्लें इंसानी बच गई। ये सब इंसान जो इस जमीन पर मौजूद है नूह की नस्ल से चलते हैं, उसके बेटों की नस्ल से चलते हैं, और वो कबीलों में, उम्मतों में और मज़ाहिब में तब्दील हो गए, लेकिन थे नूह की नस्ल से, एक शख्स के कलाम की ताबेदारी करने से। अब्राहम को देखें, खुदा के कलाम को सुना कि तू अपने बाप, अपने नातेदारों में से निकल, मैं तुझे एक बड़ी कौम, आसमान के सितारों और जमीन के रेत के जर्रों से ज्यादा तेरी नस्ल को बढ़ा दूंगा। एक शख्स ने खुदा के कलाम को मान लिया, एक शख्स ने खुदा के कलाम को कबूल कर लिया। वो अपने बाप का खौफ छोड़कर आसमान के खुदा का खौफ उसकी जिंदगी के अंदर, वो खुदा के कलाम से डरा कि ये खुदा जो बोल रहा है दर हकीकत यही खुदा है, क्योंकि उसने पुत्तों को कभी बोलते ना देखा था। यशवा की किताब उसके 24वें बाब में लिखा है कि अब्राहम, नाहूर और तारा ये सब बड़े दरिया के पार गैर मबूदों की प्रस्तिश करते थे। अब्राहम अपने बाप दादा के साथ बुतों के सामने झुकने वाला शख्स था, गैर मबूदों के पास जाने वाला। लेकिन जब उसने देखा कि ये खुदा जो जाहिर हुआ है ये तो बोल भी रहा है, ये तो कलाम कर रहा है, उसने उसी खुदा के कलाम को कबूल कर लिया। और आप देखें कि किस तरह खुदा ने उसको, उसकी नस्ल को बढ़ा दिया। इस जमीन के ऊपर आज तक इस्राएलियों से ज्यादा बाइख्तियार लोग आपको नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के कलाम की ताबेदारी की। खुदा ने कहा था जो तुझे बरकत दे मैं उसको बरकत दूंगा। जब इसहाक ने जो दुआ याकूब को दी, जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत करूंगा। आज आप उन कौमों को देखें जो बनी इस्राएल पर लानत करते हैं, उनकी हालत देखें क्या है। वो लानत करते हैं। बलाम ने जब लानत करने के लिए आया तो कलाम में लिखा है कि मैंने उसके मुंह में लानत को बरकत में बदल दिया। कोई शख्स लानत करे, खुदा उस लानत को मुंह में बरकत में बदल देता है। खुदा अपने कलाम को उस शख्स के मुंह में डाल देता है, मेरे और आपके लिए, बरकत के लिए, जिंदगी के लिए, बहाली के लिए, तरक्की के लिए। कोई शख्स लानत नहीं कर सकता। कलाम में लिखा है कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए कारगर साबित ना होगा। क्यों? क्योंकि जब हम खुदा के कलाम पर खड़े हो जाते हैं, कोई हथियार जो हमारे खिलाफ बनाया जाए, कोई जादू, कोई तावीज, कोई अफसून, कोई लानत हमारे खिलाफ कामयाब नहीं हो सकती। खुदा ने बलाम के मुंह में कलाम को बदल दिया, लानत को बरकत में बदल दिया, क्योंकि खुदा ने अब्राहम से वादा किया था, खुदा ने याकूब से वादा किया था जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर। तो क्या बलाम ने बरकत पाई थी? खुदा के कलाम से हटकर नहीं, बलाम भी हलाक हुआ। यहूदा और पतरस के दूसरे खत में पढ़ें तो बलाम के सजा का जिक्र आपको वहां पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम से हट गया। जब खुदा ने बनी इस्राएल कौम के ताल्लुक से कहा कि ये गुलामी में जाएंगे, नबूवतों की बात जब हम देखते हैं, खुदा ने अपने नबियों की मार्फत नबूवतों में कलाम किया। खुदा ने कहा था मूसा से कि तुम्हारे भाइयों में से, किसमें से? तुम्हारे भाइयों में से खुदा मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा। अमाल की किताब उसके 3 बाब की 24वीं आयत के अंदर 22वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने मूसा की मार्फत जो कलाम किया था, यीशु मसीह को तुम्हारे भाइयों में से उठा खड़ा किया। आमीन। खुदा ने जो नबी की मार्फत कहा वो पूरा किया। खुदा ने कहा था कि एक कमवारी हमला होगी। यशायाह की किताब उसके 7वें बाब के अंदर 9वीं आयत में खुदा ने कहा था एक कमवारी हमला होगी। लूका की मार्फत इंजील बयान उसके 1 बाब की 31वीं और 34वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि यहूदा के कबीला में से एक औरत जिसका नाम मरियम था, वो कमवारी थी। उस कमवारी के पास एक फरिश्ता जब्राइल भेजा गया। एक कमवारी के वसीला से खुदा का बेटा इस जहान के अंदर हमें आता हुआ दिखाई देता है। खुदा ने जो कुछ अपने मुंह से कहा, खुदा ने उसको पूरा किया। यीशु मसीह ने कहा था कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन वो बातें जो शरीयत में लिखी उनमें से एक बात भी न टलेगी, एक नुक्ता और एक शोशा भी नहीं हटेगा। एक बात तो पूरी बहुत दूर की बात है, एक नुक्ता, एक शोशा
जो जेर जबर और फुल स्टॉप है, ये भी उसमें से नहीं हटाया जाएगा। खुदा ने जो नबियों की मार्फत कलाम किया, खुदा ने कहा था कि बनी इस्राएल कौम 70 साल असीरी के अंदर रहेंगे। यिर्मयाह की किताब में खुदा ने यिर्मयाह से कलाम किया कि 70 साल की असीरी में रहेंगे। कलाम में लिखा दानियल की किताब 9वें बाब में 70 साल पूरे होने पर दानियल बैठा और यिर्मयाह के सहीफों को, खुदा के कलाम को पढ़ने लगा। और खुदा के कलाम को वो पढ़कर जब खुदा का तालिब हुआ, उसने लिखा कि मैंने रोजा रखा, मैंने टाट और खाक में बैठकर खुदा के हुजूर दुआ की। जब खुदा के कलाम को पढ़कर वो खुदा का तालिब हुआ, अज़रा की किताब उसके पहले बाब की पहली, दूसरी, तीसरी आयत में पढ़े तो वहां पर एक्सपीरियंस बादशाह के ताल्लुक से लिखा कि वो बादशाह, उस बादशाह ने बनी इस्राएल कौम से कहा कि खुदा ने मेरे दिल को उभारा है कि मैं बनी इस्राएल कौम को उनके मुल्क में वापस भेजूं। खुदा ने बनी इस्राएल को बाबल की गुलामी से निकालकर वापस उनके मुल्क में बसाया। खुदा जो कहता है वो पूरा करता है। अगर उसने बरकत का वादा किया है तो वो बरकत मिलेगी, अगर उसने लानत का कहा है तो लानत ही आएगी। यीशु मसीह ने कहा कि तौरात और नबियों के सहीफों में से एक भी बात नहीं टलेगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे, आसमान और जमीन अपनी जगह से हट सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कभी नहीं हट सकता। इसी से खुदा की पहचान है कि वो कैसा खुदा है, वो कैसे अपने कलाम की पासदारी करता है, वो कैसे अपने कलाम को बुजुर्गी देता है, कैसे अपने कलाम की इज्जत करता है। यीशु मसीह के ताल्लुक से हमने दूसरा हवाला देखा। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम इन बातों को होता देखो तो जान लेना, ठीक है, जैसे डाली नरम होती है इंजीर की, तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। जब तुम इन बातों को होता देखो तो जान लेना कि मैं दरवाजा पर हूं। आसमान और जमीन टल जाएंगी, मेरे मुंह की बातें, किसके मुंह की बातें? मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। शरीयत की बातें न टलेंगी, नबियों की बातें न टलेंगी, मेरे मुंह की बातें भी न टलेंगी। वो हर एक बात पूरी होगी, हर एक बात, कोई बात भी उसमें रह ना जाएगी। वो कलाम जो यीशु ने कहा, जब यार यीशु के पास आया तो वो रोने लगा, घुटनों पर यीशु के पांव में लोटपोंड होने लगा। खुदावंद यीशु, मेरी बेटी मरने के करीब है, तो मेरे साथ मेरे घर चल। खुदावंद खड़े हुए और चलने लगे। राह में लिखा है कि लोगों ने खबर दी कि अब उस्ताद को तकलीफ ना दे, अब उस्ताद को तकलीफ ना दे, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु ने कलाम में लिखा है लूका की इंजीली बयान में कि उनकी बातों पर तवज्जो ना करके, ध्यान ना देकर यार से कहा खौफ ना कर, फकत इत्तेकाद रख, तेरी बेटी जीती रहेगी। उसने कहा था कि वो जीती रहेगी। उसने हाथ पकड़कर कहा तलीता कुमी, ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वो उठ खड़ी हुई, क्योंकि यीशु ने कहा कि जो बातें मेरे मुंह से निकली उनमें से एक भी न टलेगी। यीशु को यह बताया गया कि लाजर मर गया है, तो उसके शागिर्दों को भी यह खबर मिली। 4 दिन के बाद यीशु ने कहा आओ चलें हम लाजर को मुलाकात करने। उन्होंने कहा उस्ताद वो तो मर चुका है। यीशु ने कहा वो मरा नहीं, वो सोता है। जब मरथा यीशु मसीह के पास आई तो कहने लगी कि उस्ताद अब उसमें से तो बदबू भी आती होगी। तो यीशु ने क्या कहा? वो कहता है कि तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ, क़यामत के रोज जिस दिन मुर्दे जी उठेंगे। क़यामत का मतलब है मुर्दों का जी उठना, किसी शख्स की मौजूदगी में, किसी खुदा की मौजूदगी में, किसी खुदा के सामने मुर्दों का जी उठना, यह क़यामत है। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी, मैं हूं वो खुदा जिसके सामने मुर्दे उठ खड़े होते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। और जब वो कब्र के सामने गया उसने कहा ऐ लाजर मैं तुझे कहता हूं बाहर निकला। और लाजर कफन से बंधा हुआ बाहर निकल आया, क्योंकि यीशु ने कहा था कि उसके मुंह की बातें न टलेंगी। मत्ती का इंजील का 24वां बाब पढ़ें तो वहां पर यीशु ने जो बातें आखिरी जमाना के ताल्लुक से कही, क्या वो ऐसे ही हमें पूरी होती नजर नहीं आती? यीशु ने कहा था कि कौम कौम पर चढ़ाई करेगी, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, काल आएंगे, वो बाएं आएंगी, जंगो जदल होगा, और हैकल जो है उसके पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। मसीह यीशु के आसमान पर जाने के बाद 70 ईस्वी में रूमी गवर्नमेंट ने, रूमी हुकूमत ने यरूशलेम को जला दिया, पूरे का पूरा, एक पत्थर पर भी पत्थर बाकी ना रहने दिया, और वो हैकल जो थी गिरा दी गई।
اور 1948 میں جیسا خدا نے دانیل نبی کی معرفت کہا تھا اس کلام کو پورا کیا، اور 1948 کے اندر اسرائیلی قوم پھر سے اپنے ملک میں بحال کیے گئے، کیونکہ خدا نے کہا تھا، یسوع نے کہا تھا، وہ کلام، وہ باتیں جو یسوع کہتا ہے وہ ضرور ہی پوری ہوگی۔ جب یسوع نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو کہا توبہ کرو۔ کیا کہا؟ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ جو توبہ نہیں کرتا وہ ہلاک ہوگا۔ شیلوہ کا برج کچھ لوگوں کے اوپر گرا تو لوگ ان کے تعلق سے باتیں کرنے لگے، لیکن یسوع نے کہا اگر تم بھی توبہ نہ کرو تو اسی طرح ہلاک ہوگے۔ وہ لوگ جو گناہ میں زندگی گزارتے ہیں وہ بڑے فخر سے یہ کہتے یسوع تے آیا ہی گناہ کرنے ساڈے لئی، وہ تے مور کرن آیا سی کہ گناہ گار ہی رہنا، اپنی جگہ تو نہ ہٹنا۔ میں آج تک مور کر رہا کہ میں گناہ گاراں لے آیا سا کہ تسی سدا گناہ گار رہو۔ کیا اس لیے آیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ، موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاؤ۔ جو توبہ نہیں کرتا، یسوع نے کہا وہ ہلاک ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے کلام کو سن کر جو ڈرتا نہیں، جو خوف نہیں کھاتا، جو کانپ نہیں جاتا، جو جھک نہیں جاتا، خدا کا طالب نہیں ہوتا، وہ ہلاک ہوگا۔ مکاشفہ کی کتاب کو 2-3 باب کو پڑھیں، بار بار خدا کلیسیاؤں سے کہتا ہے جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، کلام کو سنے۔ اگر نہیں سمجھ آتی خدا سے کہیں مجھے سننے والے کان دے تاکہ تیرے کلام کو سن کر شنوا ہو جاؤں، تیرے کلام کو سن کر اس کی تابعداری کروں تاکہ برکت پاؤں، موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاؤں۔ یہ سنے ہوئے کلام کے تعلق سے عبرانیوں کے خط 4 باب کی 2 آیت میں لکھا کہ سنے ہوئے کلام نے اسرائیلیوں کے دلوں میں جگہ نہ پائی۔ کلام انہوں نے بھی سنا لیکن اپنے دلوں کے اندر جگہ نہیں دی اور ہلاک ہوئے۔ وہ شخص جو کلام کو سنتا اور اپنے دل میں اس کو قبول نہیں کرتا، اس سے ڈرتا نہیں، اس کے مطابق خوف کھا کر عمل نہیں کرتا، اسرائیلیوں کی طرح ہی ہلاک ہوگا۔ یسوع نے کہا کہ روح اور دلہن کہتی ہے کہ خداوند یسوع اب روح اور دلہن کے کلام کی بات ہے۔ یہاں پر روح فرما رہا ہے دعا کریں کہ یسوع مسیح جلد آئے، اور کلیسیائیں بھی یہ کہہ رہی ہیں خداوند یسوع مسیح جلد آ، لیکن لوگوں کی اکثریت چرچز کے اندر خوف زدہ ہے۔ خداوند یسوع ہلے ٹھہر جا ذرا، مینوں اپنی زندگی صحیح کر لین دے، 1 سال 2 سال 3 سال جدو کام ہو جائے گا نا پھر میں تیرے پیچھے آواں گا۔ ایک شخص یسوع کے پاس آ کر کہنے لگا اے استاد مجھے وقت دے کہ اپنے باپ کو دفناؤں۔ اس نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، تو میرے پیچھے چل۔ ہم خدا سے مہلت اس طرح کی مانگتے ہیں کہ دنیا کے کاموں کو پورا کرنے کے بعد ہم خدا کے طالب ہونا چاہتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا، یہ خدا کے کلام کی عزت نہیں، یہ تحقیر، یہ اس کو رد کرنا، اس کی تذلیل کرنا، اس کی بے عزتی کرنا ہے۔ تو جو شخص خدا کی بے عزتی کرے، خدا کے کلام کو رد کرے، کیا وہ برکت پائے گا؟ نہیں، ہمیشہ کی آگ میں، جیسا یسوع نے کہا تھا کہ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا۔ بتھیرے اس روز ابراہم اور اسحاق کے ساتھ بادشاہی میں داخل ہوں گے، لیکن بادشاہی کے بیٹے باہر تاریکی اور اندھیرے میں ڈالے جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے کلام کو سنا اور رسپیکٹ نہ کی، رد کر دیا، وہ ہمیشہ کی آگ کے اندر۔ یہ خدا کے کلام کے تعلق سے داؤد کہتا ہے کہ تو نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عزت دی، کہ جیسا خدا کا کام ہے ویسا ہی خدا کا نام ہے، جیسا نام ہے ویسا ہی خدا ہے۔ آمین۔ سو وہ لوگ جو خدا کے کلام کو سن کر ڈرتے اور کانپ جاتے ہیں، وہ زندگی کے اندر برکت کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی زندگیوں پر غور کریں، کہاں کب کس وقت ہم نے خدا کے کلام کو سن کر بھی سنے ہوئے کلام پر دھیان نہ رکھا، رد کر دیا، خدا کے کلام کو چھوڑ دیا اور ہلاکت ہماری زندگیوں کے اندر آئی۔ خدا سے معافی مانگیں، خدا کے طالب ہوں اور خدا سے کہیں کہ خدا مجھے فضل اور توفیق دے کہ سننے والے کان دے، قبول کرنے والا اور عمل کرنے والا دل جس کا تو نے حزقیل کی معرفت کہا تھا، میری زندگی میں پورا کر اپنا کلام، اپنے کلام کو میری زندگی میں پورا کر۔ خداوند کو پکاریے، خداوند سے دعا کیجیے۔